सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। थर थर कंपै जीअड़ा थान विहूणा होए। थान मान सच एक है काज न पीटै कोय। थर थर कंपै जीअड़ा थान विहूणा होए। थान मान सच एक है काज न पीटै कोय। थिर नारायण थिर गुरु थिर साचा विचार। सुर नर नाथ है नाथ तू निधारा आधार। सर्वे थान थनंतरी तू दाता दातार। जह देखा तह एक तू अंत न पारावार। थान थनंतर रब रहया गुर शब्दी विचार। अण मंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार। थान थनंतर रब रहया गुर शब्दी विचार। अण मंगया दान देवसी वड्डा अगम अपार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालिक सर्व कला समरथ छतर चवर तखत दे मालिक सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी दी चरण शरण अंदर सुभाईमान सत्कारयोग साध संगत जीओ। आप जी ने हजूर दे चरना विच नमस्कार करके अपने मस्तक दे लेख भागशाली बनाए हैं। अज दी लड़ीवार विचार विच गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दी बाणी विचों 934 अंग ते सुभाईमान शब्द जो कि गुरु नानक देव जी द्वारा उचारण किया गया है। इस बाणी के उचारण का स्थान दक्षिणी भारत विच नर्मदा नदी का किनारा एक मंदिर है जिसका नाम ओंकार है। उसनों ओंकार का मंदिर कहते हैं। उत्थे एक पुजारी पत्थर की मूर्ति नूं भी ओंकार ही कहंदा सी। सतगुरु ये सारा भरमण करदे उत्थे पहुंचे ते उस ब्राह्मण नूं सीधे रस्ते पाउण दे यतन कीते। उस अधीन क्योंकि जदों भी किसी नूं मार्ग दिता जाता है बाहरी तौर ते तां सड़कां बाहरों बदलदियां ने पर अंदरूनी रस्ते जदों तब्दील करने होण सिवाय अखरां तो होर कोई जुगत नहीं है। साडे मन दे रस्तियां नूं बदलण लई सिर्फ ते सिर्फ अखर ने शब्द ने जो सदियां तो अमोड़ मन नूं रस्तियां विच भुले भटके मनुख नूं मार्ग प्रदान करदे ने। पर वो शब्द पूरे गुरु दे होण वो शब्द जिउंदे होण उन्हां विच शक्ति होवे। 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 वो शब्द जिउंदे होण उन्हां विच
ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੁੱਝੇ ਹੋਏ ਕੋਲੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਖਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਂਗ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਅਗਨੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਸ਼ਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚਾ ਹੋਏ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਲੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਸੁੱਟਿਆ, ਜੋ ਨਿਕੰਮਾ ਸੀ, ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਹੀਰਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ, ਮੌਲਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖਿੜਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਸਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੂਰ ਨੂੰ, ਆਤਮ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਚਮਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉਵੇਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਹੈ ਜਗਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਖੁਦ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਦਾ ਦਿਸਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਦਮੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹਨੇਰਾ ਬਚੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਨਣ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਿਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦਿਨ ਚਾੜ ਦਿਆਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਚਮਕਾ ਦਿਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਾਲਖ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਾਨਣ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨਾ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚਾੜਿਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
कलकत्ते तो लैके सारी धरती नूं अपने पंजे विच लै लिया, सूरज चढ़ा दिता, वाकई चढ़ाया। गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते ये तो एक धरती ते सूरज चढ़िया, 100 धरतियां ते हज़ारां धरतियां ते भी बंदा सूरज चढ़ा दे, यानी कि हज़ारां धरतियां ते कब्जा कर लवे। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े, 1000 इते चांदन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। गुरु दे इत्थे अर्थ ने आत्मा दा प्रकाश। पर कबीर साहब कहते असी दूजे पासों सूरज चढ़ाया, पच्छम फेर चढ़ावे सूर। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ के वेखो, कहते दुनिया ने पूर्व वाले सूरज ते भरोसा किया, जिहड़ा पूर्व वालों चढ़दा है, ਉਹਦੇ ਤੇ आधारित ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ मनुख। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ सूरज ਚੜਾਇਆ, ਹੁਣ ਡੁੱਬਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿਆ ਜਿੱਥੇ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਫੇਰ ਚੜਾਵੇ ਸੂਰ। सूरज चढ़ाई उधरों दिता जिथे सारे सूरज डुबते हैं, हुण डुबण का सवाल ही नहीं। जिंदगी शुरू ही उत्थों कर दी जिथों मौत आउंदी संसार की, हुण मौत का रस्ता ही बंद कर दिता, रस्ता ही नहीं रहा। इस करके दोपहर भी एक थां ते बेनती कर रहा सी, संत विच ते साडे विच इन्ना ही फर्क है। संत दे 2 जन्म ने, साडा इक्को ही जन्म है। एक जन्म असी सारिਆਂ ने लिया है, पर दूजा नहीं ले सके। एक जन्म शरीर का है, दूजा जन्म गुरु नानक दे घर दे विचों नाम दी दात द्वारा अपने आपे नूं जन्म देना है। बड़े घट लोग ने जिन्हां दे दूसरा जन्म हुंदा है। एक जन्म तो आपां सारिਆਂ ਦਾ ही। एक जन्म माँ बाप दे घर विच होया है। माँ ने सानूं जन्म दिता है, पिता ने। वो साडे शरीर का जन्म होया। सतगुरु कहंदे इत्थे रुक क्यों गया है? ये तो तेनू साधन मिलिया सी कि इहदे राहीं तू दूजे जन्म विच जावें। तेरे विच कुछ ऐ जन्म पिया है, उहनूं जन्म लैण दे। वो बंद ही पिया है, आंडे विच है तू, जिवें तुसीं वेखिया होना। ये बड़ी अजीब उदाहरण गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने दिती, क्योंकि 4 खाणियां दे राहीं जीव जन्म लैंदे ने। उन्हां विचों मनुखी जन्म इक्को बारी हुंदा सिर्फ, क्योंकि मनुख आंडे दे राहीं जन्म नहीं लैंदा। 4 खाणियां ने, अंडज, जेरज, सेतज, उतबुज। सेतज कीनी, उतबुज खान, बहुर रच दीनी। साडे जिहड़े शरीर का जन्म है ना, ये जेरज राहीं होया है, आंडे राहीं नहीं होया। पर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह ने आंडे दे जन्म की उदाहरण दी है। एक थां ते शब्द आउंदा है, फूटो आंडा भरम का, मनै भयो प्रगाश। काटी बेड़ी पगै ते गुर कीनी बंद खलास। गुर शीतल नाम दियो, तपत कड़ाहा बुझ गया। गुर शीतल नाम दियो। आंडा कहंदे टुट गया। हुण तुसीं ध्यान दिओ, पंछी दे बच्चे दा 2 बारी जन्म हुंदा है। पंछी दे बच्चे दा, कोई भी पंछी है, इल है, बाज है, कां है, चिड़ियां ने, एक बारी ते पंछी नूं ओहदी मां आंडे दे राहीं जन्म दिंदी, जदों आंडा दिंदी, ते दूसरी बारी फिर वो आंडा टुटदा है ते ओहदे विचों बच्चा निकलदा, फिर वो जन्म लैंदा है। 2 जन्म ने पंछी दे। शायद गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच इसे वास्ते संत नूं पंछी कहा है, इसे वास्ते शब्द वरत्या बिहंगम। तुसीं शब्द पढ़िया होएगा गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच, खास करके कबीर साहिब उहदी वरतों करदे ने। गौड़ी 52 अखरी आपां एक बारी इत्थे विचारी सी। रह बिहंगम कतै न जाई, अगै गह गए गगन रहाई। बिहंग शब्द संत वास्ते वरत्या, पंछी शब्द वरत्या गया, जिहदे विच सच्चे पातशाह जी कहंदे ने परंदा ना गिराहा जार। परंदे दे अर्थ ने पंछी। तुसीं ये शब्द 2 दरवेश ते पंछी इकट्ठे पढ़े होणगे। वो आम कहावत विच आउंदे ने, जिहदे विच कहा जांदा है कि पल्ले कदे ना बंद दे पंछी ते दरवेश। दरवेश नूं पंछी क्यों कहा है?
गुरु ग्रंथ साहिब जी ने भी कहा है, होर विचारधारा ने भी कहा है। वो तां ही कहा है क्योंकि पंछी का जन्म भी दो बारी हुंदा है। एक बारी उहदी माँ, पंछी माँ आंडे दे राही जन्म देंदी है, तो दूसरी बारी वो आंडा टुटदा है तो पंछी बाहर निकलता है। संत भी इस तरह आ ते साध संगत जिहड़ा शरीर जे ना सच ये है आंडा ही है, इस तो वध कख भी नहीं है। आंडे ही तुरया फिरदा, सारे आपां जिहड़े तुरे फिरने अजे आंडा टुटा है नहीं। असी एक गर्भ विच भरम विच हाँ, आंडे विच हाँ, भरम दे आंडे विच। पर असी यही तो गलती कर ली। सतगुरु कहते सब तो वड्डी गलती मनुख दी है वे इन्हें जिंदगी जीवन समझ लिया, इस जीवन जन्म समझ लिया। ये तो वड्डी होर कोई गलती नहीं, क्योंकि असी फिर कहने काम हो गया, हुण करना की है। इत्थे आके साडी ते गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा अलग हो जाती है। सानू पता ही नहीं वो विचारधारा है कि गुरु साहब कहते तू अजे अद्धा जन्मिया, जन्म के अद्ध विच आया, तेरे शरीर का जन्म होया है, अजे तू नहीं जन्मिया। तेरा आंडा टुटेगा अजे भरम का, तेरे ख्यालों का आंडा तेरे जीवन के दुआले वलेटिया होया, उन्होंने तोड़ेगा गुरु, तो टुटेगा तां आंडा तां टुटदा है जे माँ उहदे उत्ते बवे ते आंडे तां टुटदे ने। अज जिथे आपां आके बहिने आ संगत विच, इत्थे सेक मिलदा, उस आंडे नूं टुटण दी स्थिति बनदी। सिमरन की है, नाम की है, नाम यही है साडे अंदर नूं सेक दिंदा है ताकि साडा अपना आप जन्म लै सके। तुसीं सुनिया एक बजुर्ग ने ये कह दिता सी गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के दरबार विच कि मैं 10 साल दा ते उम्र सी 80 साल। उन्हें कह दिता मैं 10 साल दा, सारे हस पे बई 10 साल का चिट्टा दाड़ा उठन लग्या कंध नूं हथ पाउंदा है, इहदी उम्र 10 साल दी। किसी ने कहा की गल, समझ तो कम लवो। उन्हें क्या समझ तो ते लै रहा, पर तुहाडे सारियां दी समझ विच नहीं आ रहा, मैं की कर सकना। पुछया की गल, कहंदे 10 साल दा मैं। कहंदे तू तो 80 साल दा सी, पता कीता है। कहंदे 80 साल दा मैं माँ बाप के घर वालों गिना तो 80 साल दा मेरा शरीर है, पर मेरा जन्म 10 साल तो होया। मैं गुरु गोबिंद सिंह के चरणों नाल 10 साल तो जुड़िया। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मेरा जन्म ही नहीं, उस आंडा सी एवें पिया होया सी। आपां आंडे ते भरोसा कर लिया, आपां इस जिंदगी ते भरोसा कर लिया। गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़ना होर चीज़ है, गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल सांझ पाउणी एक होर गल है। ख्याल रखना दो चीज़ां ने, सतगुरु नाल सांझ पाउणी होर गल है। एक होर ख्याल मैं साझा कर दियां, सिख अपनी जिंदगी गुरु दे नाल, गुरु ते सिख तो शुरू करता है ते भरा तक आके समाप्त कर देंदा। चारे अवस्थावां लिखियां ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। सो सिख सखा बंधप है भाई। पहला सिख सिख हुंदा है ते गुरु गुरु हुंदा है, फिर सिख सखा हो जाता है। सखा का मतलब मित्र बन जाता है, दोस्त बन जाता है, नेड़े आ जाता है। गुरु नूं अपने अंदर की गल कहंदा ते गुरु तो अंदर की गल सुनदा है। आपां ते बाहरों बाहरों की सुनने, गुरु की गल किहड़ी सुनने। पाठ कराया जी, लंगर कराया ते लंगर कराया, गुरु की गल घट सुनी, अपनी आजादियां सुनाइयां। एडा वड्डा अन्या। सखा बन गुरु दा, सिख तो सखा। सो सिख सखा, सखा दे अर्थ ने मित्र, दोस्त, नज़दीकी, कट्ठे बहन वाले, गुप्तगू करने वाले, आपसी डूंगी गल करने वाले। सिख तो दूसरी दशा है सखा बनना, गुरु का मित्र बनना, फिर बंधव बनना, रिश्तेदार बनना। फिर चौथी अवस्था है भाई। भाई का अर्थ है भरा बन जाना गुरु दे। गुरु नानक देव जी ने अपने पहले नाल तुरन वाले नूं भाई मरदाना कहा सी। भाई, भाई का मतलब भरा। तो मैं पिछे बेनती करके आया, भाई मरदाना जी ने एक दिन कह भी दिता सी, महाराज भरा तो कहते हो भरा वाला काम भी करो। जिन्हों भरा कहीए ना, जायदाद वंड के देनी पैंदी विचों अद्धी, भी ये मेरा भरा है, जायदाद वंडनी पैंदी है। वो दावा करदा मैनू दिओ विचों कुछ। तो गुरु नानक साहब ने कहा, मरदानिया तेनू भरा कहा, दस की चाहिए तेनू, दियांगा। कहंदे नहीं, तुसी सुक्का भाई कहंदे हो, सुक्का भरा। कहंदे दस की चाहिए।
उन्होंने कहा बाबा ना तेनू भुख लगे, ना तेनू प्यास लगे, ना तेनू मोह सताए परिवार का, जां ते इस डोम नूं भी अपने वर्गा कर लै, नहीं तो साडी तेरे नाल निभनी नहीं। ये है भरा दी गल, गुरु नाल भरा बन जाना। पर यह गल वखरी है, गुरु का भरा मित्र दोस्त ते रिश्तेदार बन के भी अपने आप नूं एक थोड़ी जी निवाण ते गुरु तो अदब दे विच रहना, ये बड़ा जरूरी है। इसकी जरूरत बहुत वड्डी है। पर पूरा सतगुरु ते कहंदा मैं तेनू उदण ही सिख समझांगा जिदन तू मेरे वर्गा हो गया। ये है भी तो सच्चाई ना, ये तो एक सच है। पूरा गुरु ये कहंदा है कि मैं तेनू उदण सिख समझूँ जिस दिन तू मेरे वर्गा बन गया। उस तो पहला किवें साँझ बन सकती, उस तो पहला तो तू कलंक लाएगा, तू लाज ला देगा मैनू, किवें हो सकना तू जिन्ना चिर मेरे वर्गा ही नहीं। एक सच्चाई है कि पुत्र दियां नाड़ां, पुत्र दियां हड्डियां, पुत्र दे हथ पैर पिता जिन्ने होने चाहिए ने, तां उसका पुत्र है, तां उहदी औलाद है। उहदे नैन नक्श अपने पिता वर्गे होने जरूरी ने, नहीं तो उहदे ते उंगल उठदी है, उहदे ते शक पैंदा है। असी कह देने असी भी ते गुरु दे पुत्र ही हाँ। सतगुरु कहंदे पहला चेहरा वेख के आ, मेरे नाल मिलदा भी है कुछ तेरा, जा वेख के आ पहला शीशे विच, मेरे नाल तेरा संबंध है कोई, मैनू कलंक ना लाई, एवें धोखा ना दई। जिस दिन तू मेरे वर्गा होएगा कह सकेगा, कहण दी लोड़ ही नहीं पैनी, लोगों ने कह देना गुरु दा पुत्र है, कहण दी जरूरत पैगी नहीं, तेनू ऐलान करने नहीं पैना। और ये भी मैं बेनती करा, चेहरे दो प्रकार दे ने, एक चेहरा बाहर लै, एक चेहरा अंदर लै। सानू सतगुरु ने कृपा की, बाहरला चेहरा दे दिता है, हुण आपां अरदास करिए अंदरला चेहरा भी दिओ, सुभाव वाला भी गुरु वाला। ते जिन्हां नूं अजे बाहरला चेहरा नहीं मिलिया वो अरदास करिए भी सानू बाहरला चेहरा दिओ पहले, क्योंकि थां बनेगी ना तां। तुसीं कदी वेखना आपां घर विच रखण वाला समान पहला खरीदने आ कि घर बनाउण तो बाद, एक बड़ा वड्डा सवाल है। कई सज्जन कहते हैं भी सिੱਖੀ अंदर आवेगी तो बाहर भी रख लो, ये चीज़ एक वखरी है। पर याद रखो घर का फर्नीचर बाद विच खरीदिया जाता है, पहला घर बनाया जाता है। रसोई का समान बाद विच खरीदीदा है, रसद पानी बाद विच खरीदीदा, पहला रसोई बनती है वो बाद विच खरीदीदा है। असी कहने मन सिख साडा, मन की सिੱਖੀ बाद विच आएगी, पहला तन की सिੱਖੀ तो कमा ली जीवन में, थां ते बनाइए जिहदे विच सिੱਖੀ रखनी, सिੱਖੀ वाला थां ही कोई नहीं, अजे मकान कोई नहीं है। इस करके सखा ते सिख वो है जिहड़ा गुरु दे नाल संबंध रखदा है। ते दो जन्मां दी मैं गल कर रहा सी, ते एक जन्म होया साडा माँ बाप दे घर विच, ते दूसरा जन्म होना साडा गुरु दे घर विच। जिवें आप जी बहिंदे हो ना आके संगत दे विच, इत्थे वो थां है जिवें एक पंछी माँ अपने बच्चे नूं आंडे विचों जन्म देण वास्ते उहदे उत्ते बहिंदी है, अपने शरीर की हीट द्वारा उस आंडे नूं तोड़दी है। गुरु की संगत विच सिख प्यार नाल बवे ते नाम जपे ते बाणी सुने, कीर्तन सुने, समझ लो साडा मन जिहड़ा है ये गुरु दे प्यार ते हीट दे नेड़े आ गया। हुण इस आंडे ने टुटना है इत्थे, ज्यों ज्यों इनू असी गरमैश देंगे, रोज़ रोज़ सिमरन होवेगा, बाणी सुनांगे, ये भांडा जिहड़ा है ये आंडा टुट जाएगा कवर भरम दा, जिन्हों गुरु साहब ने क्या फूटो आंडा भरम का, फूटो आंडा भरम का, फूटो आंडा, फूटो आंडा भरम का, फूटो आंडा भरम का, मन पयो परगास, मन पयो परगास, मन पयो काटी बेड़ी पग है ते, काटी बेड़ी पग है ते, काटी बेड़ी
गुर कीनी बंद खलास, 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 गुर कीनी बंद खलास। बंद खलास शब्द बहुत प्यारा है ते गुरु नानक देव जी कहते बंद खलासी भाणै होए, होर आख ना सकै कोई। बंद खलासी होनी बड़ी कठिन है। असी किसी बंधन विच पए हुए हैं ते अज दे शब्द नूं भी आपां लैणा समय दे विच, जिहदे विच गुरु नानक देव जी कल दे श्लोक दे नाल मिलवें शब्द कह रहे ने, जो उस ब्राह्मण नाल ओंकार दी मूर्ति दे पुजारी नाल संबंध हो के उचारे सन। कल दे विचार विच सतगुरु ने कहा सी कि जेड़ा मनुख इस शरीर नूं पा के जो देवता है, इस पत्थर दे देवते नूं छड्ड, तेरा शरीर ही देवता बनाया परमात्मा। पर इहदे विचों एक वैगुरू नूं भुला के जेड़ा रसां नूं चुगदा है ते नाम नूं विचों त्याग दिंदा है, उहदे खंभ टुट जांदे ने ते अवगुणां दी भीड़ बन जांदी है। कल आपां विचारिया सी, हुण उस भीड़ विचों निकले किवें ये अज दस्सिआ है, क्योंकि पूरे गुरु की निशानी वो बीमारी दस के फिर दवाई भी दसदा है भी किवें निकलांगे। पहलां दसणगे तैनूं बंधन है, फिर दसणगे इस तरह बच सकेगा। अज कह रहे ने जेड़ा मनुख अवगुणां दी दलदल दे विच फस गया है, दुखां दे विच घेरिया गया, उहदी हालात की है। कहंदे थर थर कंपै जीड़ा, पहला राजों नरक, तपों राज ते राज तो नरक। गुरु अर्जन देव जी भी कहंदे ने गौड़ी वाहिगुरू श्लोक संस्कृति दे अंदर कि जेड़े राजे लोग ने जिन्हां कोल संसार दी ऐश इशरत ज़्यादा है, दान परा पुरबेण पुचंते महीप ते, पुरबले दान के अनुसार बंदे नूं धन ते इज्जत मिलती है, पर उन्होंने प्राप्त करके जे बुद्धि विपरीत हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। दान परा पुरबेण पुचंते महीपते, विपरीत बुद्धिंग मारत लोक है, उन्हां दी बुद्धि भ्रष्ट कर दिंदा धन। नानक चिरंकाल दुख भोगते, फिर वो दुख विच डिग पैंदे। अज दा शब्द उस हालत विच थर थर कंपै जीड़ा, जदों आदमी मुसीबतां विच दुखां विच आ जांदा ना, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ फल हुंदा, उत्थे ਉਹਦਾ फिर जिहड़ी जिंद है ना, वो थर थर कंबदी, ਉਹਨੂੰ सहारा कोई नहीं मिलता। ते हजूर कहंदे थान विहूणा होए, वो ऐसी दशा विच चल जाता है जिहड़े थां ते ना दवाई काम करदी, ना दारू काम करदा, ते होर भी चीज़ां धार्मिक उपराले भी बंद हो जाते हैं। जिवें गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ना, बल छुटकिओ बंधन भरे कछु ना होत उपाए, कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। ये वो दशा है। सतगुरु कहंदे थान विहूणा होए, विहूणे दा अर्थ जिस थां ते ताकत ही छुट गई, जिस थां ते शक्ति ना रही। ये उस हालत दे विच कह रहे ने, जदों दुखां दा मींह पै जाए जिंदगी दे विच, मुसीबतां मींह बन के वस जाण, उस वेले किहड़ी चीज़ है जिहड़ी सानू सहारा दे सकदी है। सतगुरु कहंदे थान मान सच एक है, उदों इक्को ही थां बचदा है। इन्हां दुखां तो बचन दा इक्को ही थां बचदा है, मान। मान दा अर्थ है ये मन लेना कि ये दुख मेरे ही कर्मां करके आए हन। सब तो पहला कारज दुखां तो छुटण दा पहला स्टैप, होर कोई राह नहीं। पहला इत्थे आउणा पएगा, ये मनना ही पएगा दुख मेरे करके आया है, होर कोई कारण नहीं। उलामे छड्डने पैणगे, दूजियां ते आरोपित करना बंद करना पएगा। पहला तेनू मनना पएगा, क्योंकि तेरी बंद खलासी उदों होनी जदों तू भाणे विच आया। बंद खलासी भाणे होए, होर आख ना सकै कोई। थान मान मन लै तू, प्रवान कर लै, क्योंकि दुख दा विज्ञान यह है
दुख नूं पूरी तरह स्वीकार कीतियां 50% दुख उस वेले खत्म हो जाता है। स्वीकार करन दी देर है, वो वधदा ही तां जदों असीं टकराउने उहदे नाल भी क्यों आया, नहीं सी आउणा चाहीदा, ਇਹਦੇ करके आया, ਉਹਦੇ करके आया। सब तो पहला नुकता दुख तो बचन का प्रवान कर लेना। तू प्रवान कर, परमात्मा तेनू प्रधान बनाएगा। पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान, पंचे सोहें दर जान, पर प्रवान करन दी जाच सिख। थान मान मन लै उसनू, यही थां है दुख नू हटाउण दा। सच एक है, थान मान सच एक है, इको ही थां है कि उन्हों मन काज ना फीटै कोई। फीटै दा अर्थ बिगड़ जाना। तेरी जिंदगी का कोई भी काम बिगड़ेगा नहीं फिर, क्योंकि तू परमात्मा दे अगे समर्पण कर दिता, सरेंडर कर दिता, सौंप दिता। तेरा कोई भी कारज हुण राह विच नहीं रहेगा। गुरु अर्जन देव जी ने बड़े थावां ते कहा, जां को चिंता बहुत बहुत देही व्यापै रोग। गृहस्थ कुटुंब पलेटिया कदे हरक सक कदे सोग। गौण करे चौकुंट का घड़ी न बैसन सोए। चित आवे उस पार ब्रह्म, तन मन शीतल होए। होर बचन कहे से राग दे विच, जां को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे। लागू होए दुश्मना साख पे भज खले। सबो भजै आसरा चूकै सब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म, लगै न तत्ती वाओ। ये मुश्किल विच घेरे हुए बंदे की निशानी है। जे को होवे दुबला नंग भुख की पीर। कमज़ोर हो जाए माया के तौर पर, दुबला हो जाए, नंग हो जाए, भुखा हो जाए, दमड़ा पल्ले ना पवे, काम करे पर बरकत ना पवे, जेब खाली रवे, दमड़ा पल्ले ना पवे, ना को देवै धीर। तो कोल कोई इस तरह का भी नहीं जिहड़ा धीरज दै भी कोई गल नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो भी नहीं कोल। दमड़ा पल्ले ना पवै, ना को देवै धीर। स्वार्थ स्वाओ ना को करै, ना किछ होवै काज, कम भी ना मिले। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते, चित आवे उस पार ब्रह्म, नेचल होवै राज। इन्नियां बरकतां ने उहदे नाल जुड़न दे विच। ते सतगुरु कहते, जे तू उन्हों एक नू मन लेगा, तेरा कारज कोई बिगड़ेगा नहीं। हजूर कहते, थिर नारायण, थिर दा अर्थ कायम, चढ़दी कला विच। क्योंकि जिस नारायण दे अगे तू समर्पण कर देता है, वो थिर है, उच्चा है। थिर गुरु, तेरा गुरु भी स्ट्रोंग ते शक्तिशाली है। थिर साचा विचार, तो ये विचार भी बड़ा शक्तिशाली है कि उहदे भाणे नूं मनना, उहदे अगे समर्पण कर देना। सुर नर नाथ है नाथ तू निधारा आधार। ते वो परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू उन्हां नूं आसरा दिंदा जिहड़े बेआसरे हो जांदे ने। देवतियां दा सहारा है, अनाथां दा नाथ है। हजूर कहंदे, सर्बे थान थनंतरी तू दाता दातार। जिहड़ा इस विश्वास नूं जिसने लभ लिया कि मेरा अकाल पुरख मेरे नाल है, मेरा सहाई है, मेरे कोल है, फिर वो हर एक थां ते अपने आले दुआले उहदी सत्या नूं, उहदी शक्ति नूं महसूस करन लग पे। जिन्हें उहदे ते भरोसा कीता, जय जय काज किरत सेवक की, तहां तहां उठ धावै। वो दौड़ के भज के उस थां ते उस सेवक की रखिया करदा है, उहदी सहायता करदा है। सर्बे थान थनंतरी तू दाता दातार। जय देखा तै एक तू अंत न पारावार। पर यह विश्वास इन्ना गहरा तां बनदा है जे गुरु के चरणों के नाल जुड़ के जिंदगी नूं उजागर किया जाए, गुरु के मार्ग ते तुरिया जाए। विश्वास सीधा पैदा नहीं हुंदा। कहण नूं तां सारे कहंदे ने परमात्मा नाल है। विश्वास उदों गहरा होवेगा जिस वेले साडी जिंदगी विच कुछ वापरेगा, उस तो पहला विश्वास गहरा नहीं होएगा। जिसने उन्होंने एक के हर एक थां ते देखिया, थान थनंतर, सारियां थावां दे विच रब रहा। रब दा अर्थ समाया होया। तू दा थान थनंतर रब रहा, गुर शब्दी विचार। पर यह विचार तां परपक्क होवेगी जे आपां गुरु के शब्द नाल सांझ पावांगे। अण मंगिया दान देव सी,
ਵੱਡਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਣ ਮੰਗਿਆ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੀ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਗੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਰਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ 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 ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ 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 ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਉਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਉਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਉਏ ਹੋ
ਚਾਓ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ 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 ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ 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 ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਨਾਨਕ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।